Good morning, everyone. Welcome to this new lecture of Transportation Engineering 2. As you all know that we are dealing with the fourth unit of transportation. We have covered the first three units which were based on railway engineering. And in last lecture, as I told you that the fourth and fifth unit will be based on airport design. Okay, basically air transportation. And mainly we will deal with the airport design, airport layout, and what are the different types of runway length and what should be the layout of airport. Okay, and unit 4 and unit 5 will be based on air transportation. And in last lecture I have almost told you everything about the unit 4 and unit 5th, the main topics of unit 4 and unit 5th. Okay, we will start with our today's lecture with the next topic which we last time we have covered about the basic introduction. We have seen the basic introduction of airport. Okay, what are the airports, what are the types of airports, okay, and what is basic layout of airport. Okay, we have seen this. And in last lecture we also see what are the different types of component of aircraft. Okay, component of aircraft also. Okay, what are the wings, what is fuselage. Okay, we have seen different types of component of aircraft. So today as I told you, in last lecture it was only the basic introduction of airport. Okay, from today onwards we will see the most important things which is mainly in your syllabus, such as the characteristics of aircraft, what should be the points you should be kept in mind while selecting the site for airport. Okay, these are the two important part of your syllabus which we will cover today, inshallah. So let's see the first one, that is characteristics of aircraft influencing airport design. Okay, so today we will start with the characteristics of aircraft. Now just understand the meaning here. Characteristics of aircraft. Okay, aircraft means airplane. Okay, characteristics of aircraft influencing means affecting airport design. It simply means what should be the type of aircraft, what should be the features aircraft should have. Okay, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इसका जो सिंपल मीनिंग आप समझोगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयरक्राफ्ट इन्फ्लुएंसिंग एयरपोर्ट डिजाइन, यानी कि एयरक्राफ्ट के अंदर ऐसे क्या क्या फीचर्स होना चाहिए जिसकी वजह से हम एयरपोर्ट के डिजाइन पे उस पर फर्क पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल अगर आप ही सोचोगे तो एक दिमाग में आएगा एयरक्राफ्ट का साइज, उसके हिसाब से हम रनवे की लेंथ, रनवे की विड्थ, टैक्सीवे की विड्थ ये सब बना सकते हैं. ठीक है, तो एयरक्राफ्ट किस टाइप की एयरक्राफ्ट उस एयरपोर्ट पे लैंड होने वाले हैं, उस एयरपोर्ट पे आएंगे, उस एयरपोर्ट से वो सर्विसेज देंगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है एयरपोर्ट का डिजाइन. इसलिए दैट्स व्हाई दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयरक्राफ्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. On the basis of characteristics we can design the airport, we can design the layout of airport. Designing the layout of airport means simply providing the width, the length and different component of different layout of airport in which you can easily design the taxiway, runway. जहाँ पे आप रनवे, टैक्सीवे, हैंगर, जो हैंगर्स हमने कल पूरा हमने देख चुके हैं. In last lecture we have seen almost everything about the airport layout. इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि रनवे क्या होता है, टैक्सीवे क्या होता है, एप्रॉन्स क्या होते हैं, हैंगर्स क्या होते हैं. लास्ट लेक्चर में हमने लेआउट में ये सब देख चुके हैं. तो जब आप एयरक्राफ्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ रहे हो, इसका मतलब आप एयरपोर्ट के डिज़ाइन के हिसाब से उसे करोगे. यानी कि एयरपोर्ट का आपको डिज़ाइन करना है तो आपको एयरक्राफ्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए कि जो भी एयरक्राफ्ट उस पर्टिकुलर एयरपोर्ट पर लैंड कर रहे हैं या वहाँ से टेक ऑफ कर रहे हैं, तो उस एयरक्राफ्ट के हिसाब से ही वहाँ पे एयरपोर्ट का लेआउट होना चाहिए, उसका डिज़ाइन होना चाहिए. एयरपोर्ट का डिज़ाइन या एयरपोर्ट का लेआउट का सिंपल मीनिंग है कि वहाँ पे टैक्सीवे की विड्थ कितनी होना चाहिए, कितना एरिया टैक्सीवे को देना चाहिए, कितना एरिया एप्रॉन को मिलना चाहिए, हैंगर जो रूम है उसका साइज़ क्या होना चाहिए. सिंपल यही है एयरक्राफ्ट का एयरपोर्ट का डिज़ाइन. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एयरक्राफ्ट की कैरेक्टरिस्टिक यानी कि एयरक्राफ्ट की फीचर्स क्या क्या होते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द characteristics of aircraft. This is important, characteristics of aircraft.
So let's start. Here are the 13 important features of or characteristics of aircraft, which we will see one by one. As you can see in front of your screen, there are almost 13 points on which on which the design of aircraft or design of airport is based. Okay, so the first one is here is aircraft capacity. Second is aircraft speed, aircraft weight and wheel arrangement, then minimum turning radius, minimum circle radius, size of aircraft, takeoff and landing distance, type of propulsion, tire pressure and contact area, noise, range, fuel spillage, jet ballast. These 13 points mainly affect the design of aircraft और also the design of airport. तो ये जो 13 पॉइंट्स है इनके बेसिस पे एयरक्राफ्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्पेसिफाई किया गया है. एयरक्राफ्ट की रेंज को हमने इसमें स्पेसिफाई किया है कि ये इतने पॉइंट्स के ऊपर एयरक्राफ्ट की जो है वो उसके फीचर्स एयरक्राफ्ट के बेस्ड होते हैं. ठीक है, तो एयरक्राफ्ट की कैपेसिटी के हिसाब से अलग अलग एयरक्राफ्ट आते हैं, उसकी स्पीड के हिसाब से अलग अलग एयरक्राफ्ट आते हैं. तो हम आज देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स या स्पेशल फीचर्स क्या है एयरक्राफ्ट के. ठीक है, ओके. सो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स की मीनिंग यहाँ पे पता होना चाहिए. इट इज नथिंग बट अ डिस्टिंग्विश फीचर्स ऑफ एनीथिंग, यानी कि एयरक्राफ्ट की अलग अलग फीचर्स, उसी को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स. सो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है एयरक्राफ्ट कैपेसिटी. तो चलिए देखते हैं कि एयरक्राफ्ट कैपेसिटी क्या होता है. सी है, aircraft capacity means the number of passenger handling ability of an aircraft. यानी कि एक पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट में कितने पैसेंजर्स ट्रैवल कर सकते हैं. ओके, मीन्स द नंबर ऑफ पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ एन एयरक्राफ्ट. ओके, यानी उसमें कितने पैसेंजर बैठ सकते हैं, दैट इज नथिंग बट एयरक्राफ्ट कैपेसिटी. अब इसका क्या फर्क पड़ता है, देखिए एयरक्राफ्ट की कैपेसिटी, जैसे कि नागपुर एयरपोर्ट पे कोई 300 पैसेंजर्स का एक एयरक्राफ्ट आ रहा है, तो वहाँ पे मैक्सिमम, देखिए हम जो एयरपोर्ट का डिज़ाइन करेंगे वो चीज़ों को मैक्सिमम कंसिडर करेंगे. जैसे कि कोई एयरक्राफ्ट 100 पैसेंजर्स का आ रहा है, लेकिन हम जो एयरपोर्ट का डिज़ाइन करेंगे वो मैक्सिमम के लिए करेंगे. ये चीज़ आपको पता होना चाहिए. तो जैसे कि एयरक्राफ्ट की कैपेसिटी के बेस पर हम वहाँ पे टर्मिनल्स को बनाएंगे कि टर्मिनल्स कितने बड़े होना चाहिए. ठीक है, एयरक्राफ्ट अगर 300 लोगों को ला रहा है एक पर्टिकुलर एयरपोर्ट पे, इट मींस द टर्मिनल्स शुड हैव द कैपेसिटी for 300 people at the same time. Okay, in a particular time, not only 300, there may be another aircraft which will be landing, which will have a capacity of 100, so it means 400. So the capacity is very important. Based on the capacity you can design the terminal building also. Last lecture we have seen what is terminal building. Okay, terminals is nothing but a building in which passengers can rest, passengers can take their tickets, generally customs. Okay, all these facilities are provided in terminal buildings. Okay, this is called processing terminal. So on the basis of aircraft capacity you can design the terminal building. After that, passengers and baggage handling facilities. For example, an aircraft is coming with 300 passengers, it means the airport should have a facility for passengers baggage handling also. Okay, it should have a capacity for large passengers accommodation and handling their baggages also. Okay, so that is the aircraft capacity. Okay, so based on this capacity we can design these features also. After that, cargo processing. There are a lot of luggage, there are a lot of for example materials is traveling, so airport should have that facility also to accommodate a large material or large packages. Okay, cargo means the basic material. Okay, materials, usually the materials also travel through airways. Okay, the large material also travel through airways. So cargo means basically goods or material, you can say. So the airport should have facilities for cargo also. If you remember, while we were studying railway engineering, there were one topic called station and yards. In that particular topic we have seen that there are particularly different types of yards are also there for only for handling the goods or cargo thing. Okay, goods or material. So those are the stations for goods and material, but in airport these cargo facilities should be provided on airport only. So airport should have these facilities also.
for processing the cargo. Okay, the material, the goods which will travel through airway, the airport should have these facilities also. After that, based on these aircraft capacities, apron size, special equipment also can be designed. Size of apron also can be designed, because if you remember, apron is a particular area where aircraft can stand, and also in apron area only passengers uh, can move into the plane. Okay, from in apron area also. Okay, usually passengers come for coming from the terminal building, goes to the apron area. Okay, there is a passage in apron area. Through that passage, passengers can shift from passage to plane. Okay, so size of apron also plays very important role, and there are various special equipments are also can be designed based on the aircraft capacities. For example, the parking lot also. Okay, the ticket counters, number of ticket counters. So these are basically based on the aircraft capacities. After that, the next thing is aircraft speed. As you can see, there are aircraft capacities, the first characteristics. The next one is aircraft speed. So based on the aircraft speed also, the airport can be designed. Okay, if you remember, in previous lecture, the International Civil Aviation has classified airport on the basis of speed also. Okay, the FFA, Federal Aviation Agency or Administration, they have designed the airport based on the speed of aircraft. If you remember, the codes were A, B, C, D. They have differentiated the airport based on the letter A, B, C, D. A means the aircraft which has less speed, and E means the aircraft which has the highest speed of landing. Okay, so aircraft speed is also very important. Here two different types of speed is considered in aircraft. First is air speed. Aircraft speed with respect to air. Okay, remember, air speed means aircraft speed with respect to air. Ground speed with respect to ground. Okay, there are two speeds. One is where aircraft is moving in air, another is when aircraft is moving in ground. Okay, and ground speed can be calculated by plus minus wind speed. We will see what is wind speed and wind direction. Okay, if wind is moving in opposite direction, means minus. If wind is moving in the same direction, it means plus. Okay, we will see this wind direction in future. First is, then after that, what is the benefit of higher speed? For example, an aircraft is moving with a higher speed, it means what happened, it reduces the journey time. जैसे कि एयरक्राफ्ट की स्पीड बहुत ज़्यादा है, क्या होगा, जर्नी टाइम जो पैसेंजर का वो कम हो जाएगा. इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्लेन ट्रैवल कर सकते हैं, है ना. यानी कि 1 घंटे में 2 प्लेन जा रहे थे, अगर स्पीड जा रहा है तो 1 घंटे में 3 प्लेन वहाँ से जाएंगे. आफ्टर दैट, इम्प्रूविंग एंड ब्रॉडनिंग द एयर नेटवर्क सिस्टम. जितना जल्दी जल्दी ट्रैवल करेगा एयर एयर जो प्लेन है वो एयर में, इट मीन्स जो एयर नेटवर्क सिस्टम है वो ज़्यादा, हम वहाँ पे एयरक्राफ्ट ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल कर सकते. जितना स्पीड बढ़ेगी उस मतलब एक एक पर्टिकुलर एरिया में कोई एयरक्राफ्ट मूव हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर ज़्यादा स्पीड से मूव हो रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम कंसिडर करेंगे इसे, फॉर एग्जांपल ये जो ग्रीन में आपको दिख रहा है, सपोज एक पर्टिकुलर जोन है. अब यहाँ पर एक एयरक्राफ्ट ये है, एक एयरक्राफ्ट ये है, ठीक है. अब क्या हो रहा है, इनकी स्पीड अगर ज़्यादा है तो मतलब ये एयरक्राफ्ट इस जोन को स्पीड से पास करेंगे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एयरक्राफ्ट अकोमोडेट हो सकते हैं एक पर्टिकुलर जोन में. इसका यही मीनिंग है, इम्प्रूविंग एंड ब्रॉडनिंग द एयर नेटवर्क सिस्टम. स्पीड ज़्यादा है तो एयरक्राफ्ट ज़्यादा से ज़्यादा एयर नेटवर्क में ट्रैवल कर सकते हैं, ब्रॉड हो जाएगा पूरा. आफ्टर दैट, overall due to higher speed, longer runways is required and larger facilities required for increased traffic. अब यहाँ पे एयरपोर्ट पे डिजाइन पे देखिए किस तरीके से एयरक्राफ्ट की स्पीड अफेक्ट करेगी. जैसे कि एयरक्राफ्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे लैंड करने वाला है कोई भी प्लेन, फॉर एग्जांपल यहाँ से प्लेन आ रहा है और ये यहाँ पे लैंड करने वाला है. तो सपोज यहाँ पे एक एयरक्राफ्ट आ रहा है, वो इस पर्टिकुलर रनवे पे लैंड करेगा. हम एक रनवे का एक डायग्राम, छोटा सा एयरपोर्ट है, ठीक है. अब ये जो एयरक्राफ्ट आ रहा है इस रनवे पे लैंड करेगा,
अब ये रनवे पे कितना दूर जाएगा, ठीक है ना। अगर इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है तो जब ये लैंड करेगा तो ज़्यादा इसको ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है, इसको ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, यानी कि रनवे की लेंथ को हमको इंक्रीज करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। अगर स्पीड कम है तो यहाँ पे लैंड करेगा और थोड़ा दूर जाके वो रुक जाएगा। बट इफ द स्पीड इज हायर इट मीन्स द लॉन्गर रनवे शुड बी प्रोवाइडेड, बिकॉज वो जो इफेक्ट आएगा एकदम से अगर प्लेन यहाँ पे लैंड करेगा तो उसकी एक स्पीड की वजह से वो ज़्यादा ट्रैवल करेगा ग्राउंड पे, ठीक है। तो इसलिए रनवे की लेंथ को बढ़ाना पड़ता है, तो इसलिए स्पीड के ऊपर भी रनवे की लेंथ डिपेंड करते हैं। और रनवे कहाँ पे है, एयरपोर्ट पे, तो इसलिए एयरपोर्ट के डिज़ाइन पे एयरक्राफ्ट की स्पीड अफेक्ट करेगी। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज वेट ऑफ एयरक्राफ्ट एंड व्हील कॉन्फ़िगरेशन। जो हमारा नेक्स्ट था आप देखोगे यहाँ पे, वो था एयरक्राफ्ट का वेट और उसका व्हील का अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द लेंथ ऑफ द रनवे एज वेल एज द स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट। स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट में हम थिकनेस की बात करेंगे। देखिए, किसी भी पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल किसी भी पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट का जो वेट है वो कितना होगा, उससे हम रनवे की थिकनेस को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रनवे को आपको डिज़ाइन करना है, एक पर्टिकुलर रनवे की थिकनेस को, उस रनवे की थिकनेस के ऊपर कितने एयरक्राफ्ट लैंड करेंगे और उनका साइज, उनका वेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए वेट जो है एयरक्राफ्ट का वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है रनवे की लेंथ और उससे भी इम्पोर्टेंट उसके थिकनेस के ऊपर। जितना ज़्यादा लोड आएगा उतना आपको थिकनेस बढ़ाना पड़ेगा। थिकनेस के ऊपर जितना ज़्यादा एयरक्राफ्ट का वेट है उतनी ज़्यादा आपको थिकनेस रखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर वेट ऑल्सो। ओके, थिकनेस के ऊपर इस तरीके से असर करेगा वेट ऑफ एयरक्राफ्ट। तो और रनवे की थिकनेस मतलब एयरपोर्ट के अंदर ही है, तो एयरपोर्ट के डिज़ाइन पे ये भी अफेक्ट करेगा। आफ्टर दैट व्हील कॉन्फ़िगरेशन। व्हील कॉन्फ़िगरेशन में देखिए क्या होगा, इसमें भी थिकनेस रनवे, देखिए यहाँ पे एयरक्राफ्ट व्हील कॉन्फ़िगरेशन जो है, यानी कि व्हील का अरेंजमेंट, कॉन्फ़िगरेशन मतलब व्हील का अरेंजमेंट, थिकनेस ऑफ रनवे, टैक्सीवे, एप्रॉन, इस पे बिल्कुल अफेक्ट करेगा। व्हील, जितने व्हील रहेंगे, ठीक है ना, उतना ज़्यादा लोड नीचे जाएगा, है ना। लेकिन जितने नंबर ऑफ व्हील्स बढ़ेंगे उतना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन होगा लोड का। जैसे कि ये तीन अगर 100 के, फॉर एग्जांपल 300 एग्जांपल ले लो, कुछ पर्टिकुलर एक कोई चीज़ है जो कि 300 केजीज की है, फॉर एग्जांपल ये 100 या 100 या 100 ले सकता है। लेकिन जितने नंबर ऑफ व्हील बढ़ेंगे उतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड अच्छा होगा, एक एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया। इसलिए देखिए यहाँ पे, तो इसलिए एयरक्राफ्ट का जो व्हील कॉन्फ़िगरेशन है वो थिकनेस के ऊपर असर करेगा रनवे की। टैक्सीवे, टैक्सीवे आपको पता होना चाहिए क्या था, मैंने लास्ट टाइम बताया था। टैक्सीवे, एप्रॉन सब बताया था आपको क्या होता है, ठीक है। टैक्सीवे मतलब जो एयरक्राफ्ट को रनवे से कनेक्ट करता है ना, वो था टैक्सीवे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेंगे, जैसे कि ये आपका यहाँ पे एयरक्राफ्ट खड़े होते हैं, फॉर एग्जांपल अज्यूम करो, और यहाँ पे आपका रनवे है, यहाँ पे आपका रन ये रनवे हो गया, यहाँ पे एयरक्राफ्ट खड़ा है, ठीक है। तो जब एयरक्राफ्ट यहाँ पे जो पार्किंग में खड़ा है, फॉर एग्जांपल एप्रॉन में, जहाँ से पैसेंजर यहाँ पे बैठते हैं, फिर उसके बाद एयरक्राफ्ट कहाँ से आएगा, ये जो एप्रॉन, ये जो आपको दिख रहा है टैक्सी वे, जो येलो कलर में दिख रहा है, इसे बोलता है टैक्सी वे, जो कि एप्रॉन यानी कि जहाँ पे एयरक्राफ्ट खड़े होते हैं वहां से लेके रनवे को कनेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एज टैक्सी वे। एप्रॉन मतलब जहाँ पे पैसेंजर्स बैठते हैं, जहाँ पे प्लेन खड़े रहते हैं। उसके बाद उस पर्टिकुलर एप्रॉन से प्लेन जब मूव करेगा तो पहले रनवे पे आएगा ना, रनवे पे कहाँ से आएगा, वो टैक्सी वे के थ्रू आएगा। एक छोटे से, एक तरह का छोटा सा रोड है जो कि कनेक्ट करता है रनवे और टैक्सी वे को। तो ये जो छोटा सा रोड है, छोटा सा पेमेंट है, ठीक है, यहाँ से प्लेन इस पे आके रनवे पे आएगा, तो रनवे और एप्रॉन को जो कनेक्ट करता है दैट इज कॉल्ड एज टैक्सी वे। तो ये येलो वाला टैक्सी वे है, रेड वाला रनवे, और दिस ग्रीन इज एप्रॉन। तो इसके डिज़ाइन पे असर पड़ेगा, जब व्हील का नंबर ऑफ व्हील ज़्यादा रहेंगे तो आपको इसके साइज भी बढ़ाना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होगा ग्राउंड पे, जैसे मैंने बताया, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन, जब बेटर व्हील है, ज़्यादा से ज़्यादा व्हील है तो बेटर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आफ्टर दैट टर्निंग डिफिकल्टीज फॉर मोर वेट इन केस ऑफ शार्प कर्व। फिर देखिए यहाँ पे, जब यहाँ से एप्रॉन, ये जो टैक्सी वे से इस पे जाएगा रनवे पे, तो टर्निंग डिफिकल्टी हो सकती है। जितने ज़्यादा व्हील रहेंगे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम भी आ सकती है, ठीक है ना।
यहाँ पे ये चीज़ भी ध्यान रखना पड़ता है। आफ्टर दैट स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन द सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइडेड एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द व्हील कॉन्फ़िगरेशन। जितने ज़्यादा व्हील्स है उतना ज़्यादा स्टेबल है प्लेन, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब देखिए इसका अरेंजमेंट क्या क्या होता है। सबसे पहले देखिए सिंगल व्हील जिसमें 3 होते हैं। ये जो मैंने कल ही बताया था, जो व्हील को गियर भी बोला जाता है, तो ये फ्रंट गियर, ये बैक गियर। तो यहाँ पे 2 जो होते हैं बैक गियर में होते हैं, फ्रंट गियर में होते हैं। उसके बाद देखिए ड्यूअल व्हील होता है। ड्यूअल व्हील मतलब डबल डबल व्हील होते हैं, तो ये ड्यूअल व्हील असेंबली है। उसके बाद 2D ड्यूअल व्हील, यानी कि सिंग फ्रंट में तो ड्यूअल होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए 2D होता है, यहाँ पे 4 दो इधर दो इधर, ठीक है, इस तरीके से होता है। आफ्टर दैट 2D/2D2 यानी कि डबल ड्यूल टेंडम होता है, जो कि बड़े प्लेन यानी कि बोइंग 747, जो कि बड़े बड़े प्लेन होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अरेंजमेंट किस तरीके से, यहाँ पे रियर में 2 तरह की 2 एक्सल गियर एक्सल है, ठीक है। पहले वाले में देखिए 4, दूसरे वाले में 4। इस तरीके से देखिए कि नंबर ऑफ व्हील्स जो है इसके, फ्रंट में तो 2 है और बैक में देखिए एक एक्सल में 8 है, दूसरे में 8 यानी कि 16, ठीक है। उसके बाद एक और होता है 3D ट्रिपल टेंडम। ये बड़े बड़े प्लेन्स में होता है। इसमें देखिए फ्रंट में 2 ही रहेंगे, ये फिक्स है, सिर्फ सिंगल व्हील, और इसमें मैक्सिमम 2 होते हैं, ठीक है ना। फ्रंट में मैक्सिमम 2 होते हैं और मिनिमम ऑफ कोर्स 1 ही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे असेंबली है, देखिए 3D जो असेंबली है, 3 इधर साइड 3 इधर साइड, ठीक है ना। ये कितने हो गए फिर देखिए 3 3 6 6, कितने हो गए 12 हो गए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए 2D/3D2 ड्यूल टेंडम प्लस ट्रिपल टेंडम, ये दोनों का मिक्सचर, ये देखिए ये दोनों का मिक्सचर है, 3 इधर साइड 3 इधर साइड, और यहाँ पे जो 2 दिख रहे हैं उसमें ऐड हो जाता है। ये मैक्सिमम होती है व्हील असेंबली। इस तरीके से व्हील्स का अरेंजमेंट होता है अलग अलग इसके हिसाब से। तो इसके हिसाब से हमको पेवमेंट, टैक्सीवे, एप्रॉन की थिकनेस, ठीक है ना, ये जो पेवमेंट्स हम बना रहे हैं एयरपोर्ट पे, इसके डिज़ाइन पे अफेक्ट करता है व्हील की असेंबली, ठीक है। हम रनवे की लेंथ, रनवे की पेवमेंट भी डिज़ाइन करेंगे, तब आपको ये समझ में आएगा और अच्छे से, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से व्हील असेंबली होती है, व्हील अरेंजमेंट होता है। आप देखोगे कि ये जो एयरबस A380 है, इसमें मैक्सिमम व्हील आपको दिख रहे हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर व्हील अरेंजमेंट आपने देखे, और आपने ये भी पता है आपको, इतने आप सेमेस्टर से पढ़ते हुए आ रहे हो कि जितने ज़्यादा व्हील रहेंगे उतना अच्छा लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और लेकिन उसका पेमेंट पे इफेक्ट भी पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट सेमेस्टर में जब आप पेमेंट डिज़ाइन पढ़ोगे तो उसमें आप ये सब चीज़ें और डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। So let's move to the next thing, which is minimum turning radius। जो आपका नेक्स्ट था और इम्पोर्टेंट था, दैट इज मिनिमम टर्निंग रेडियस। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, मैं बहुत आसानी से इसको आपको बता देता हूँ। बहुत सिंपल है, आसानी से समझ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा एक कट रहा है, ठीक है। देखिए मिनिमम टर्निंग रेडियस क्या होता है, सिंपल बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए इस तरीके से एक प्लेन खड़ा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक तरीके से प्लेन खड़ा है, मैं सिंपल आपको बताता हूँ। इसमें देखिए सबसे जो फ्रंट गियर है इसका, प्लेन का जो नोज के पास जो व्हील लगा हुआ है, ठीक है ना, ठीक है ना, ये जो नोज के पास जो व्हील लगा है, जब प्लेन डिजाइन किया जाता है तो एक पर्टिकुलर एंगल पे मैक्सिमम टर्न हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही है, ये जो व्हील है, ये मैक्सिमम एक पर्टिकुलर एंगल तक टर्न हो सकता है, ठीक है ना। तो ये जो टर्न हुआ मैक्सिमम दिख रहा है आपको, एक टर्न हुआ है, और यहाँ से ये टर्न जो हुआ है, ठीक है ना, यहाँ से हम एक इमेजिनरी लाइन जब ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट, ठीक है ना, बिल्कुल स्ट्रेट हम इमेजिनरी लाइन एक ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, ठीक है ना, वो इमेजिनरी लाइन जो जा रही है स्ट्रेट, ठीक है ना, वहाँ से ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो जा रही है, वहाँ से हम एक लाइन मार्क करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से स्ट्रेट एक लाइन मार्क करेंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं ये पॉइंट यहाँ पे आके मिलेगा, ठीक है। ये जो पॉइंट यहाँ पे आके मिलेगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, इसे बोला जाता है सेंटर ऑफ रोटेशन। मे बी इट इज नॉट क्लियरली विजिबल टू यू, बट I'll read for you, that is center of rotation, okay, this point is called as center of rotation। तो ये जो नोज गियर है, यानी कि जो प्लेन के नोज है उसके पास जो गियर है फ्रंट गियर, उसको मैक्सिमम 50 से 60 डिग्री तक ये टर्न होता है। तो वो जो टर्न हुआ वहां से एकदम टर्निंग लाइन से आप एक इमेजिनरी लाइन अगर ड्रॉ करोगे स्ट्रेट, तो वो एक पर्टिकुलर स्ट्रेट जाएगी। फिर वहां से जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक्सिस जो है फ्यूसलेज से
कल हमने देखे थे फ्यूसलेज होता है, ये जो पार्ट है प्लेन का इसको बोलते हैं फ्यूसलेज। तो इससे बिल्कुल सेंटर लाइन आप मार्क करो, और जो पॉइंट सेंटर लाइन इसकी और ये जो टर्निंग जो फ्रंट गियर जो टर्न हो रहा है उसकी जो इमेजिनरी लाइन है, दोनों जो क्रॉस करेंगे इसको यहाँ पर, इट इज कॉल्ड ए सेंटर ऑफ रोटेशन। फिर सेंटर ऑफ रोटेशन आपने मार्क कर लिए। फिर जो विंग है, ठीक है ना, ये जो विंग दिख रहा है इसके अकॉर्डिंग जब आप एक सर्कल बनाओगे इस तरीके से, सर्कल जब बनेगा तो क्या होगा, फिर ये जो है ये पॉइंट से लेके ये जो सर्कल की लाइन है कॉर्नर है, इसको डिस्टेंस को बोलाता है टर्निंग रेडियस। ठीक है, ये जो सेंटर ऑफ रोटेशन से जो सर्कल बना है अपनी इमेजिनरी, वहां तक के बोला जाता है टर्निंग रेडियस। सेम ये चीज यहाँ पर भी आएगी, ये जो टर्निंग रेडियस है वो यहाँ से यहाँ तक भी रहेगा, दिस इज कॉल्ड एज टर्निंग रेडियस। फिर ये पूरा का पूरा जो है ये टर्निंग रेडियस बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये था टर्निंग रेडियस। थोड़ा सा इसके बारे में कुछ मेंशन है, हम इसको देख लेते हैं। वैसे मैंने आपको जो बताया सिंपली दैट इज नथिंग बट टर्निंग रेडियस। उसके बाद देखिए, मिनिमम टर्निंग रेडियस इज अ मेजर फैक्टर which is required for the design the turning curve between runway and taxiway, and it can be determined by following procedure। सबसे पहले तो ये टर्निंग रेडियस की ज़रूरत क्यों है, मिनिमम टर्निंग रेडियस की ज़रूरत क्यों है। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किए कि जब प्लेन कहीं पर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लेन खड़ा है, पार्क है, जब प्लेन यहाँ पे पार्क है, प्लेन जब रनवे तक जाएगा तो हमने देखे थे रनवे तक जाने के लिए उसे टैक्सीवे की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना, ये टैक्सीवे की ज़रूरत पड़ेगी, टैक्सीवे के थ्रू होते हुए ही वो रनवे पे जाएगा। सो when the plane moves through taxiway, for example the airplane usually stands, okay, while moving through the taxiway, जब प्लेन इस जहाँ पे पार्क है वहां से होते हुए टैक्सी ये जो रनवे पे जाएगा, रेड में जो आप देख रहे हो दैट इज कॉल्ड रनवे, जहाँ से प्लेन टेक ऑफ करता है, लैंड करता है। तो जब जो एप्रॉन के पास से ये जब यहाँ पे टर्न लेगा, फिर टैक्सी वे के थ्रू आते आते फिर इसको टर्न लेना पड़ेगा, है ना, प्लेन जो है उसको यहाँ से भी टर्न लेना पड़ेगा, उसको यहाँ से भी टर्न लेना पड़ेगा प्लेन को। ये देखिए यहाँ से उसको टर्न लेना पड़ेगा, अगर जिस भी डायरेक्शन में वो मूव हो रहा है, ठीक है, तो उसको यहाँ से टर्न लेना पड़ेगा। फिर ये जब एप्रॉन से इसकी तरफ जाएगा तो यहाँ पे भी इसको टर्न लेना पड़ेगा प्लेन को। ठीक है, तो जिस भी डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल यहाँ से प्लेन आके यहाँ पे लैंड किया, सीधा सीधा जाएगा, फिर यहाँ पे इसको इस तरीके से टर्न लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये जो टर्न्स लेना पड़ रहा है, ये जो टर्न हो रहे हैं, तो मिनिमम टर्निंग रेडियस का मीनिंग यहाँ पे इसलिए है ताकि हम टैक्सी वे और जो रनवे है उसकी विड्थ प्रॉपर प्रोवाइड करें। अगर टर्निंग रेडियस बहुत ज़्यादा है तो आपकी ये जो विड्थ है ये बहुत ज़्यादा होना, थोड़ी ज़्यादा होना चाहिए टैक्सी वे की, तो उसके थ्रू ये जो कर्व है, शार्प कर्व जो आएगा उसको भी हमको डिज़ाइन करना है। तो ये जो कर्व जब आती है सिचुएशन जहाँ से जो कर्व प्रोवाइड करना पड़ता है हमको, ये जो कर्व होना चाहिए अच्छे, एक प्रॉपर कर्व होना चाहिए जो कि उस प्लेन के मिनिमम टर्निंग रेडियस को अकोमोडेट कर पाए। ऐसा नहीं कि प्लेन यहाँ से मुड़ रहा है और उसके विंग्स यहाँ पे किसी चीज़ से टकरा जाए। इसलिए स्पेशली कर्व्स पे ही मिनिमम टर्निंग रेडियस की रिक्वायरमेंट आती है। ठीक है ना, पहली बात। दूसरी चीज़, जब रनवे पे भी प्लेन मूव करेगा तो इसके जो विंग्स है, ये जो विंग स्पैन होता है, ठीक है ना, ये जो विंग स्पैन है ये एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एकदम क्लियर होना चाहिए विंग स्पैन भी, विंग स्पैन के अकॉर्डिंग ही रनवे की लेंथ, रनवे की जो विड्थ है उसको डिज़ाइन किया जाता है। तो स्पेशली ये जो मिनिमम टर्निंग रेडियस है इसकी जो मेन चीज़ जो आती है वो आती है कर्व पे, जब टैक्सीवे और रनवे कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझा है। ठीक है, चलिए उसके बाद इसके बारे में कुछ लिखा है वो हम देख लेते हैं। So this is basically minimum turning radius। ओके, अब इसके बाद देखते हैं कि इसको किस तरीके से हम निकाला जाता है टर्निंग रेडियस को। मैंने इसका प्रोसीजर वैसे आपको समझा दिया हूँ, बट फिर भी जो लिखा है वो आपको बताता हूँ। द लाइन
through the axis of nose gear when it is at its maximum angle of rotation is drawn. The maximum angle of rotation is specified by the manufacturer and for a large turbojet it is between 50 to 60 डिग्री। देखिए यहाँ पे जो चीज़ मैंने आपको बताया था, ये जो नोज गियर होता है, ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल से एक टर्न लेता है, मैक्सिमम 50 से 60 डिग्री का टर्न लेता है। तो मैक्सिमम डिग्री पे हम इसको अगर टर्न कर देंगे तो यहाँ से जो लाइन जाएगी विंग्स के थ्रू होते हुए, जो लाइन जाएगी वो एक लाइन मार्क करेंगे। उसके बाद देखिए अनदर लाइन थ्रू द एक्सिस ऑफ द टू मेन गियर्स। अब यहाँ पे देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी, ठीक है, फिर उसके बाद एक और लाइन जा रही है थ्रू द टू मेन गियर्स, यानी कि बैक गियर में। इसके दो तरीके भी है, जैसे मैंने आपको जब भी बताया, एक हॉरिजॉन्टल मार्क करने के बाद वहां से हम स्ट्रेट लाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जो इसका सिंपल प्रोसीजर है दैट इज ये जो टर्न हुआ, ठीक है ना, उसके बाद टर्न होने के बाद ये स्ट्रेट लाइन हमने मार्क की, उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क किए थे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो रियर व्हील्स है, जो रियर गियर्स है, पीछे साइड के जो गियर है, पीछे साइड की जो व्हील है, उसका जो एक्सिस है उसको आप सीधा 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 मार्क करोगे तो कभी ना कभी वो इस पॉइंट से टकराएगा जो नोज गियर से इमेजिनरी लाइन थी। तो जहाँ पे वो टकराएगा उस पॉइंट को बोला जाता है सेंटर ऑफ रोटेशन। जब भी हमने देख लिया, ठीक है ना, ये सेंटर ऑफ रोटेशन से लेके फिर ये जो विंग है यहाँ से हमने जो सर्कल बनाए, ठीक है, ये सर्कल जो हमने मार्क किए, ठीक है ना, इमेजिनरी सर्कल, सेंटर ऑफ रोटेशन से वो टर्निंग सर्कल के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज टर्निंग रेडियस। सिंपल। द इंटरेक्शन ऑफ द अबाउट टू लाइन, जैसे कि हमने देखे इमेजिनरी लाइन और इस लाइन जो बैक रियर व्हील्स की जो लाइन है, इमेजिनरी लाइंस का जो दोनों इंटरेक्ट करते हैं उस पॉइंट को बोला है सेंटर ऑफ रोटेशन। द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ रोटेशन विद द टिप ऑफ द farther wing of the aircraft is known as minimum turning radius. The path of the nose gear and main gear can also be drawn. ये आपको सिंपल मैंने समझा दिया, ठीक है। आई होप आपको मिनिमम टर्निंग रेडियस समझा है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये देखिए एक क्लियर इमेज दिख रही है मिनिमम टर्निंग रेडियस की। ये नोज गियर से एक लाइन जाती है, ये लाइन इमेजिनरी लाइन गई, फिर उसके बाद जो दो साइड पीछे के बैक रियर जो है, ये जो बैक गियर्स है, रियर जो व्हील्स है, उससे इमेजिनरी लाइन गई स्ट्रेट, और ये दोनों जो लाइन जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगी वो पॉइंट जो है दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ रोटेशन। एंड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ रोटेशन एन इमेजिनरी सर्कल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस विंग्स फार्थर्स विंग। इस पॉइंट से जो मैक्सिमम दूरी पर, ये जो इंटरेक्शन पॉइंट था इसके मैक्सिमम दूरी पर जो विंग है ये तो इससे क्लोज है, यहाँ से सर्कल हम ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है, हम ड्रॉ करेंगे इसके जो दूर वाला जो विंग है वहां से। तो इमेजिनरी लाइन जो ड्रॉ करेंगे वो दूर वाले विंग से ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ हो गई उसके बाद जो पॉइंट है सेंटर ऑफ रोटेशन से लेके इसका डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड एज मिनिमम टर्निंग रेडियस, ठीक है। ये नोज गियर का पाथ होता है, इमेजिनरी एक लाइन। एक हम इमेज देखते, देखिए इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पे ये रनवे है, ये टैक्सी वे से, ये जो कनेक्ट कर रहे हैं टैक्सी वे से, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे किस तरीके से प्लेन मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ये जो है अप्रॉन का एरिया है, ये ट्रेन प्लेन यहाँ से टर्न होके ये टैक्सी वे हो गया, ये टैक्सी वे, ये टैक्सी वे है, यहाँ से जाके ये मेन जो है आपका ये होता है आपका शायद यही मेरे ख्याल से आपका रनवे है, ठीक है। तो ये देखिए प्लेन जब यहाँ से टर्न हो रहे हैं तो ये मिनिमम टर्निंग रेडियस कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेके एक पर्टिकुलर टर्निंग रेडियस है नोज गियर से लेके, ठीक है। तो ये टर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मिनिमम सर्कल रेडियस। अभी हमने देखे मिनिमम टर्निंग रेडियस, अब हम देखेंगे मिनिमम सर्कल रेडियस क्या होता है, ठीक है ना। देखिए it is a minimum radius which is required an aircraft to encircle in the sky till the permission of landing granted. Minimum circle radius affects the airport in the following manner. सबसे पहले तो मिनिमम सर्कल रेडियस क्या है मैं आपको फिर से अच्छे से बताता हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर हमने एयरपोर्ट ले लिए, थोड़ा सा क्लियर करते। फॉर एग्जांपल हमने एक एयरपोर्ट, यहाँ पे एक पर्टिकुलर एयरपोर्ट है, ये सपोज एक एयरपोर्ट है, ये लैंडिंग एरिया है। फॉर एग्जांपल ये लैंडिंग एरिया है एयरपोर्ट का। यहाँ पे सपोज कुछ 4-5 प्लेन खड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे सपोज ऑलरेडी कुछ प्लेन्स यहाँ पे खड़े हुए हैं, सपोज यहाँ पे प्लेन्स खड़े हुए हैं कुछ, ठीक है। इस
लैंडिंग एरिया में ऑलरेडी प्लेन यहाँ पे खड़े हुए, ये एप्रॉन एरिया है, ठीक है ना। लैंडिंग नहीं, हम इसको बोल सकते हैं कि एप्रॉन एरिया है या लैंडिंग। फॉर एग्जांपल ये एयरपोर्ट बिजी है, सिंपली समझिए कि एयरपोर्ट बिजी है। यहाँ पे एक नया प्लेन अभी यहाँ पे हम एडजस्ट नहीं कर सकते। ऐसी सिचुएशन आ गई है कि we cannot accommodate or we cannot adjust another plane into this particular airport because this airport is right now is very busy with the number of planes are here. So suppose another plane is coming, I'll give it a different color. Suppose this blue color plane is coming. Okay, so this blue color plane is coming and into an important and busy airport, which is right now in a very busy situation where number of planes are here. Okay, so there is no chance to accommodate this blue color plane. यहाँ पे ऑलरेडी एयरपोर्ट काफ़ी बिजी है, 5 प्लेन यहाँ पे है, तो नया प्लेन यहाँ पे अभी नहीं आ सकता। तो ऐसी सिचुएशन में, इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन वेयर द एयरपोर्ट कैन नॉट अकोमोडेट अनदर प्लेन, सो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन द प्लेन विल encircle in the sky only. तो यानी कि जब इस प्लेन को यहाँ पे लैंडिंग के लिए मौका ही नहीं मिल रहा है, तो ये प्लेन क्या करेगा, यहाँ पर स्काई में, ठीक है ना, एयर में ही रोटेट करेगा, एयर में ही रोटेट करेगा ये। तो इस रोटेशन को बोला जाता है मिनिमम सर्कल रेडियस। हम एक सर्कल यहाँ पे बना देते हैं। तो ये जो प्लेन है ये एक पर्टिकुलर स्काई में एक पर्टिकुलर एरिया में रोटेट होते रहता है। कई दफा आप देखते होंगे कि एक प्लेन आपके घर के पास बार बार कई दफा आपने देखे होंगे, स्पेशली एयरपोर्ट के पास होता है। कई दफा प्लेन जो है, सेम प्लेन एक बार बार इस यहाँ पे घूमते रहता है। वो इसलिए सर्कल लगाता है, ये जो चक्कर लगाता है सर्कल की, क्योंकि उसको यहाँ पे मौका नहीं मिल रहा है अभी लैंडिंग का। जैसे ही यहाँ से एक प्लेन मूव हो जाएगा तो वो आके लैंड कर जाएगा, बट जब तक उसको क्लियर यहाँ पे इंडिकेशन नहीं मिलता कि आप लैंड कर जाओ, तब तक वो क्या करता है, ये इसके सर्कल क्या सराउंडिंग में ही, सर्कल से बाहर नहीं जाता। एक चीज याद रखेंगे, उस पर्टिकुलर एयरपोर्ट के लिए मिनिमम सर्कल रेडियस आइडेंटिफाइड होता है, उस पर्टिकुलर प्लेन के लिए, उस पर्टिकुलर एयरपोर्ट के लिए। तो इस एयरपोर्ट के ऊपर ही पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ये प्लेन जो है वो चक्कर लगाएगा। तब तक चक्कर लगाएगा जब तक उसको यहाँ पे मौका नहीं मिल जाता है यहाँ पे लैंड होने के लिए, ठीक है। तो ये जो चक्कर लगाते जाएगा, ये जो सर्कल है जिस पे वो चक्कर लगा रहा है, उस सर्कल को का एक रेडियस है, उसे बोला जाता है मिनिमम सर्कल रेडियस। एक पर्टिकुलर पॉइंट से उस सर्कल का एक रेडियस है, सेंटर पॉइंट से, ठीक है। इस रेडियस को बोला जाता है मिनिमम सर्कल रेडियस। आई होप आपको ये सर्कल के बारे में समझा है, जो कि स्काई में होता है। जनरली इमेजिनरी सर्कल है, जिससे प्लेन जो है उसके सर्कल के अराउंड जो है घूमता है, ठीक है ना। इसे बोला जाता है मिनिमम सर्कल रेडियस। जो इसका रेडियस है दैट इज कॉल्ड एज मिनिमम सर्कल रेडियस। नाउ अगेन वी विल रीड द डेफिनेशन, नाउ you will understand clearly. See, it is the minimum radius which is required to an aircraft to encircle in the sky, till the permission of landing is granted, ठीक है ना। जब तक कि उसको लैंडिंग की परमिशन नहीं मिलती, वो इस स्काई में ही, ठीक है ना, हाँ, ऊपर ही आसमान में ये चक्कर लगाते रहेगा। तो इसका जो मिनिमम रेडियस है, दैट रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्कल इज कॉल्ड एज मिनिमम सर्कल रेडियस। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि मिनिमम सर्कल रेडियस किस तरीके से एयरपोर्ट के डिजाइन पे अफेक्ट करेगा, ठीक है। डिफाइंस द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू नियर बाय एयरपोर्ट, ठीक है ना। देखिए फॉर एग्जांपल इस एयरपोर्ट का ये सर्कल है, अब इससे कितनी दूरी पर एयरपोर्ट होना चाहिए, एक पर्टिकुलर ज्यादा है। यहाँ पे अगर एयरपोर्ट हो गया, नया एयरपोर्ट कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है, क्या हो जाएगा, ये सर्कल जो है दोनों के दोनों, ये दोनों जो सर्कल दिख रहे हैं आपको, ये क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे, ये दोनों ओवरलैप कर जाएंगे। इसलिए एयरपोर्ट जब एक एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है, नया एयरपोर्ट जब बनाया जाता है, तो एक डिस्टेंस का खास ध्यान रखा जाता है कि उससे नजदीक ना हो एयरपोर्ट, कि लैंडिंग और टेक ऑफ में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए जो मिनिमम सर्कल रेडियस है वो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दो एयरपोर्ट के बीच का डिस्टेंस के लिए। तो ये जो एयरपोर्ट है यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इसे बिल्कुल हम हटा देंगे। ये जो नया एयरपोर्ट अगर बनेगा तो वो कुछ पर्टिकुलर लॉन्ग डिस्टेंस पे बनेगा पुराने एयरपोर्ट के, ताकि जो है यहाँ का जो इसका मिनिमम सर्कल रेडियस जो बनेगा फिर वो उसके दूसरी जगह पर होगा। दो प्लेन यहाँ पे सर्कल चक्कर लगा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज मिनिमम सर्कल रेडियस। आई होप आपको समझा है, आई होप आपको ये क्लियरली समझा है।
ठीक है ना। देखिए जो दो एयरपोर्ट का डिस्टेंस होता है, फॉर लार्जर एयरक्राफ्ट इट विल बी इन किलोमीटर्स, हेंस मोर डिस्टेंस इज रिक्वायर्ड बिटवीन टू एयरपोर्ट्स। जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी दूरी पे दो एयरपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि मिनिमम सर्कल रेडियस एक जो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये दोनों ओवरलैप ना करें। एडजस्टमेंट ऑफ टाइमिंग ऑफ लैंडिंग एंड टेक ऑफ। मिनिमम सर्कल रेडियस देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, कि यहाँ पे हो सकता है एक और प्लेन आ जाए तो दोनों चक्कर ना लगाए तो एक्सीडेंट के चांस है, इसलिए लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम को एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। एयरपोर्ट कैपेसिटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज्ड एयर सर्कल टाइम। अब एक सिंपल चीज समझिए, जितना प्लेन यहाँ पे सर्कल कर रहा है, जितना टाइम लग रहा है, इसका मतलब एयरपोर्ट की कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है, उसकी कैपेसिटी कम है, इसलिए प्लेन को बार बार ज़्यादा ज़्यादा घूमना पड़ रहा है, ठीक है। आफ्टर दैट जोनिंग लॉज रिलेटेड टू हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। फॉर एग्जाम्पल ये एयरपोर्ट के पास में कई दफ़ा आपने देखे होंगे, एयरपोर्ट के पास में जो बिल्डिंग्स होती है वो बहुत ही कम हाइट की बिल्डिंग होती है, ये चीज़ आपने देखे होंगे, कई दफ़ा आपने देखी होगी ये चीज़ कि एयरपोर्ट के पास ऐसी आप देखोगे नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी, फॉर एग्जांपल ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपने देखी नहीं होंगे। नॉट पॉसिबल, इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, नॉट पॉसिबल। इसका एफएसआई बहुत कम होता है, क्योंकि प्लेन जब आएगा उसको ऑब्स्ट्रक्शन होगा लैंडिंग में, टेक ऑफ में, तो एयरपोर्ट के सबसे कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस तक के तो बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन होता है बिल्डिंग्स का, ठीक है। तो ये बिल्डिंग्स इतनी बड़ी हम नहीं प्रोवाइड कर सकते, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, तो इसे बोला जाता है जोनिंग लॉस। यानी कि एक जोनिंग का लॉ होता है कि एयरपोर्ट के पास में बड़ी बड़ी हाइटेड बिल्डिंग नहीं प्रोवाइड कर सकते, अगर बिल्डिंग है भी तो काफ़ी डिस्टेंस पे होनी चाहिए और काफ़ी उसकी कम हाइट होना चाहिए, ताकि प्लेन को टेक ऑफ और लैंडिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ मिनिमम सर्कल के रेडियस के कुछ डायमेंशंस है, वो अलग अलग एयरक्राफ्ट के हिसाब से फिक्स किए गए। जैसे कि स्मॉल जनरल एविएशन एयरक्राफ्ट जो है, विजुअल फ्लाइट रूल कंडीशन, यानी विजुअल VFR का मतलब होता है कि जो पायलट है कॉकपिट से वो क्लियरली नीचे का उसको दिख रहा है, विजुअल्स उसको पूरे क्लियर है, उसे बोला जाता है विजुअल फ्लाइट रूल, VFR बोला जाता है। अगर स्मॉल एयरक्राफ्ट के लिए देखिए 1.6 होता है, ये जो रेडियस है ये 1.6 किलोमीटर का ही होता है, ठीक है ना, 1.6 किलोमीटर का रेडियस होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बिगेस्ट एयरक्राफ्ट से टू पिस्टन, अगर दो पिस्टन इंजन है अंडर VFR कंडीशन, यानी कि पायलट को क्लियरली विजिबल है नीचे का पूरा एरिया, तो उसका जो डिस्टेंस है वो 3.2 किलोमीटर है, बढ़ गया है क्योंकि बड़ा एयरक्राफ्ट है, टू पिस्टन इंजन है। आफ्टर दैट पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट अंडर IFR कंडीशन, IFR का मतलब इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल। IFR का मतलब क्या होता है, जैसे कि प्लेन आ रहा है, पायलट जो है उसको विजुअल क्लियर नहीं है फॉग की वजह से, ठीक है ना, फॉग की वजह से या कोई भी चीज़ की वजह से उसे विजुअल क्लियर नहीं है, जनरली विंटर में भी होता है ये, ठीक है ना, फॉग की वजह से आपको ये चीज़ क्लियर ही नहीं है कि, सॉरी पायलट को ये चीज़ क्लियर ही नहीं है कि नीचे उसको कुछ दिख नहीं रहा है, क्लियर नहीं है, विजिबल विजन बिल्कुल ख़राब है। ऐसी सिचुएशन में बोला था IFR। ऐसी सिचुएशन में जो सर्कल रेडियस है वो बढ़ जाता है 13 किलोमीटर। उसके बाद जेट इंजन एयरक्राफ्ट है, बड़े बड़े जो जेट इंजन बड़े एयरक्राफ्ट है, बहुत बड़े बड़े, IFR कंडीशन है तो 80 किलोमीटर तक जा सकता है रेडियस, 80 किलोमीटर के अराउंड वो जेट इंजन वाले एयरक्राफ्ट घूमते हैं। IFR करने कंडीशन बहुत ही खराब है, विजिबल विजन जो है बिल्कुल क्लियर नहीं, ठीक है, तो ये इसका साइज बढ़ता जाता है, दैट इज कॉल्ड मिनिमम सर्कल रेडियस। आई होप आपको क्लियर हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज साइज ऑफ एयरक्राफ्ट। देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग से ही बताया आपको कि एयरक्राफ्ट का जो साइज़ है वो तो डायरेक्टली एयरपोर्ट के डिज़ाइन पे अफेक्ट करेगा, यानी कि जो लेंथ होती है, लैंडिंग की विड्थ है, एप्रॉन की विड्थ है, सब पे असर पड़ेगा। जैसे कि हम एक छोटा सा लेआउट बना देते हैं फिर से, जैसे कि एयरपोर्ट का एक छोटा सा लेआउट बना देते हैं। सपोज यहाँ पे ये एप्रॉन एरिया है, यहाँ पे प्लेन खड़े रहते हैं, यहाँ पे पैसेंजर बैठते हैं प्लेन्स में। उसके बाद हम यहाँ पे एक ठीक है, जैसे कि आप एक डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एप्रॉन, जहाँ पे प्लेन्स खड़े होते हैं, जहाँ से पैसेंजर इस प्लेन पे चढ़ते हैं या उतरते हैं यहाँ से। आफ्टर दैट यहाँ पे एक टैक्सी वे होता है जो कि एप्रॉन और रनवे को कनेक्ट करता है, रनवे जहाँ से प्लेन टेक ऑफ या लैंडिंग करते हैं। तो ये जो टैक्सी वे और रनवे है, एप्रॉन है, इनका डिज़ाइन जो है टोटली बेस्ड होता है
साइज के ऊपर, किसके एयरक्राफ्ट या प्लेन के साइज के ऊपर। जितना प्लेन बड़ा रहेगा उतनी टैक्सीवे की विड्थ बढ़ाना पड़ेगा, रनवे की विड्थ या एप्रॉन का साइज भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं फ्यूसलेज लेंथ। एयरक्राफ्ट का जो साइज है फ्यूसलेज लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। फ्यूसलेज लेंथ जो है हमने पढ़ चुके हैं लास्ट टाइम। जैसे कि एक प्लेन दिख रहा है आपको, एक प्लान है प्लेन का, ये जो लेंथ है, ये जो सिलेंड्रिकल शेप है, दैट इज कॉल्ड एज फ्यूसलेज लेंथ, कल ही हमने देखे थे। ठीक है, द लेंथ ऑफ एयरक्राफ्ट डिसाइड्स द वाइडनिंग ऑफ टैक्सीवे ऑन कर्व, साइज ऑफ एप्रॉन एंड हैंगर्स जहाँ पे प्लेन जो है वो पार्क किए जाते हैं, एक रूम होता है जिसके अंदर पार्क किए जाते हैं। तो ये जो फ्यूसलेज लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक के जो लेंथ दिख रही है आपको, ठीक है, ये फ्यूसलेज लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो लेंथ है इसके ऊपर भी टैक्सीवे रनवे का डिजाइन डिपेंड करता है। ये एयरक्राफ्ट का साइज में आ गया। गियर ट्रेड जो है, ये जो इसके व्हील्स है एयरक्राफ्ट के, ठीक है ना, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द मेन गियर एंड इट गवर्न्स द मिनिमम टर्निंग रेडियस ऑफ एयरक्राफ्ट। इसकी मैं आपको एक डायग्राम बता दूं। ये देखिए जो मेन गियर्स है या ये जो गियर्स है, इनका डिस्टेंस जो है वो टर्निंग रेडियस पे अफेक्ट करता है, हमने देख लिया अभी। ठीक है ना, उसके बाद हाइट जो होती है, इट डिसाइड्स द हाइट ऑफ हैंगर। जो है प्लेन की जो हाइट है, कल ही हमने देखे थे, जो बैक व्हील जो हाइट होती है नीचे से लेके प्लेन का जो साइज है, विंग जो होता है पीछे, उसकी जो हाइट होती है प्लेन की, वो जो हैंगर रूम होता है जहाँ पे प्लेन स्टैंड करते हैं, उसके डिजाइन पे अफेक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद जो टेल विड्थ है, ये जो बैक में जो आपको विड्थ दिख रही है, टेल विड्थ प्लेन की, इट हेल्प्स इन डिसाइडिंग द साइज ऑफ पार्किंग एंड एप्रॉन। ये जो एप्रॉन एरिया है इस पे असर करता है, पार्किंग पे असर करती है जो विड्थ होती है। व्हील बेस जो होता है, ये जो व्हील बेस होता है, नोज गियर से लेके यहाँ पे जो व्हील है, ठीक है ना, व्हील बेस इट डिसाइड द मिनिमम रेडियस ऑफ टैक्सीवे। ये जो टैक्सीवे पे हम रेडियस प्रोवाइड करेंगे। विंग स्पैन, ये जो विंग स्पैन बोले तो ये वाली विड्थ, ये जो आपको दिख रहा है डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड एज विंग स्पैन। It affects the width of taxiway, clearance distance between two parallel traffic ways, size of apron, hangers, width of hanger, gate। एप्रॉन का साइज है, टैक्सीवे की विड्थ है, इवन रनवे की विड्थ है। तो ये जो है इस पे असर करेगा कि दो प्लेन आपस में एक दूसरे के आसपास कितने डिस्टेंस पे खड़े रह सकते हैं। विंग स्पैन इस पे अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो साइज भी अफेक्ट करता है। आफ्टर दैट, टेक ऑफ एंड लैंडिंग डिस्टेंसेस। देखिए जब प्लेन टेक ऑफ कर रहा है या लैंड कर रहा है, तब जो है वो डिस्टेंस कितना होना चाहिए एयरक्राफ्ट के बीच में, वो भी इंपॉर्टेंट। टेक ऑफ एंड लैंडिंग डिस्टेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एयरक्राफ्ट which will be used for deciding the runway length. Okay, but there are also number of factors such as altitude of airport, gradient of runway, direction and intensity of wind, temperature, and the manner of landing and takeoff, which influences the takeoff and landing distance. कितने डिस्टेंस पे वो लैंड करेगा या टेक ऑफ करेगा, कितने डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद। देखिए ये सपोज रनवे है, तो कितने, जब लैंड करेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, या कितने डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद टेक ऑफ करेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ प्रोपल्शन। टाइप ऑफ प्रोपल्शन कल हमने देखे थे कि एक इंजन की कौन कौन से इंजन, सॉरी, प्लेन में कौन कौन से टाइप के इंजन होते हैं। पिस्टन इंजन होता है, ठीक है ना, जो टरबाइन इंजन होते हैं, ये सारे टाइप के अलग अलग इंजन है। टाइप ऑफ इंजन यूज्ड इन एयरक्राफ्ट कल हमने देख चुके थे इसका थोड़ा सा। उसके बाद द मेथड ऑफ प्रोपल्शन अडॉप्टेड फॉर पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट विल डिसाइड द साइज, स्पीड एंड वेट कैरिंग कैपेसिटी। जैसे कि बड़े इंजन जो है, ठीक है ना, टरबाइन इंजन वगैरह है, उसमें बड़े साइज की एयरक्राफ्ट में यूज़ करते हैं। और जितना जेट इंजन जो है वो नॉइज ज़्यादा क्रिएट करेगा, ठीक है ना, सर्कल रेडियस पे भी असर करता है। बड़ा इंजन मतलब बड़ा प्लेन हम यूज़ करेंगे, तो इसलिए टाइप ऑफ प्रोपल्शन भी इम्पोर्टेंट है। टायर प्रेशर और कॉन्टैक्ट एरिया जब भी हमने देखे शॉर्ट में, कि जो व्हील के बेस है, व्हील बेस किस तरीके से पेवमेंट पे असर करेगा। तो टायर प्रेशर की वजह से जो असर पड़ेगा वो पड़ेगा पेवमेंट के डिज़ाइन पे, उसकी स्ट्रेंथ पे, ठीक है ना। जितना ज़्यादा टायर प्रेशर आ रहा है उतना हमको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा पेवमेंट को। ऑफ कोर्स टायर प्रेशर या कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा किसका रहेगा, जो बड़े प्लेन्स है, बोइंग है या एयरबस है, ये बड़े बड़े प्लेन्स के ही टायर प्रेशर और कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा रहेगा। उसके बाद देखिए नॉइस। जब प्लेन, देखिए सब, जब प्लेन लैंड करता है या टेक ऑफ करता है तो बहुत ही ज़्यादा नॉइस क्रिएट होती है। ठीक है, तो वो किसके लिए प्रॉब्लम करेगी, जो आसपास में जो एरिया है ना, आसपास में जो एरिया है उसके लिए बहुत ज़्यादा नॉइस क्रिएट होगी वहाँ पे। सपोज ये एक पर्टिकुलर एरिया है एयरपोर्ट का, यहाँ पे नॉइज़ बैरियर लगाए जाते हैं, या
कई दफ़ा एयर इतना बड़ा एरिया बनाना पड़ता है ताकि जो सराउंडिंग यहाँ पे सपोज यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं एयरपोर्ट के सराउंडिंग में उनको प्रॉब्लम ना हो। इट देखिए नॉइस इज अ बिग प्रॉब्लम टू नियरर डेवलप्ड एरियाज। मेजर सोर्सेज ऑफ नॉइस आर इंजन की वजह से नॉइस क्रिएट हो रही है। मशीनरीज मोर ड्यूरिंग लैंडिंग, प्राइमरी जेट्स मोर ड्यूरिंग टेक ऑफ। देखिए मशीनरी इंजन जो है वो लैंडिंग वक्त में ज़्यादा नॉइस क्रिएट करेंगे और प्राइमरी जेट जो है वो टेक ऑफ के वक्त। Disturbance are more during takeoff, therefore size of airport is decided as per amount of perceived noise at the boundary of airport। जैसे कि बाउंड्री आपने फिक्स की एयरपोर्ट की, जितने ज़्यादा प्लेन आएंगे उतनी ज़्यादा नॉइस क्रिएट होगी, है ना। नंबर ऑफ प्लेन ज़्यादा है तो नॉइस भी ज़्यादा रहेगी, तो हमको इसलिए एक पर्टिकुलर डिस्टेंस सेट करना पड़ता है बाउंड्री एयरपोर्ट की ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो। People should not suffer due to this loud noise which created near the airport. Hence, the boundaries of airport should be larger for larger planes or for busy airports। जो ज़्यादा busy airport है उसके बाउंड्री थोड़ी बड़ी होना चाहिए, ठीक है, ताकि जो नॉइस है वो लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। ओके, नेक्स्ट इज रेंज। देखिए रेंज का मतलब क्या है कि बिना फ्यूल के एयरक्राफ्ट कितना ट्रैवल करता है, ठीक है ना। देखिए द डिस्टेंस दैट एन एयरक्राफ्ट कैन फ्लाई विदाउट रिफिलिंग इज नोन एज रेंज। उसे बोला जाता है रेंज, ठीक है ना। बिना पेट्रोल या बिना फ्यूल के एयरक्राफ्ट कितना ट्रैवल कर सकते हैं। देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंसेस द रेंज ऑफ एयरक्राफ्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन बीइंग द पेलोड। यूजुअली द रेंज इज डिक्रीज्ड एज द पेलोड इज इंक्रीज्ड। पेलोड का मतलब होता है पैसेंजर कैरिंग, जो पैसेंजर का वेट, एयरक्राफ्ट का टोटल जो वेट है उसे बोला जाता है पेलोड। पैसेंजर का वेट या उनके लगेज का वेट आता है पेलोड में, ठीक है। इसमें हम पैसेंजर जो प्लेन का डेड लोड है उसे काउंट नहीं करेंगे। पे लोड मीन्स लाइव लोड, वो बोल सकते हो आप। द रिलेशनशिप बिटवीन पे लोड एंड रेंज इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय फैक्टर्स सच एज मेटेरोलॉजिकल कंडीशन ड्यूरिंग फ्लाइट, स्पीड, फ्यूल, विंड, ठीक है। तो इसमें अलग अलग तरीके से फिर एल्टीट्यूड एंड अमाउंट ऑफ रिजर्व फ्यूल, ठीक है ना। तो इसमें इस तरीके से असर पड़ेगा। तो इसमें मिनिमम टर्निंग सर्कल का भी इम्पोर्टेंट है यार। ज़्यादा से ज़्यादा प्लेन जो है वो स्काई में सर्कल नहीं लगा सकता अगर उसमें फ्यूल नहीं है तो ये जो प्रॉब्लम आती है, इसलिए क्या होता है एयरपोर्ट जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस से, मतलब एक प्लेन अगर फ्यूल का प्रॉब्लम आ रहा है, फ्यूल कम हो रहा है, तो उसका नियर बाय एयरपोर्ट्स होना चाहिए। दो एयरपोर्ट के बीच में बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस रखना गलत है क्योंकि प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। क्योंकि हर प्लेन की एक रेंज फिक्स है कि वो पर्टिकुलर किलोमीटर तक चल देगा बिना रिफिलिंग के, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम फ्यूल स्पिलेज। फ्यूल स्पिलेज मतलब जो स्पिलेज फ्यूल जो है वो गिरता है, ठीक है ना। फ्यूल स्पिलेज मतलब जो फ्यूल गिरता है प्लेन से, ठीक है ना। जब प्लेन से फ्यूल जो छलकता है, सिंपल बोलेंगे तो छलकना फ्यूल का, दैट इज कॉल्ड स्पिलेज। तो ये जो फ्यूल जो स्पिलेज होता है ये रनवे पे हो सकता है, तो रनवे खराब होता है उसकी वजह से टैक्सीवे में प्रॉब्लम आएगी, तो रनवे या पेमेंट को खराब करता है। स्पिलिंग ऑफ फ्यूल्स occurs when the engine is shut down or losing speed। जब स्पीड कम हो रही है, बंद हो रहा है, तब स्पिलेज का प्रॉब्लम आ सकता है। It is spilled fuel from engine and other location into the aircraft। This may cause the speed when it is moving on the runway or taxiway, ठीक है ना। Bituminous pavement is highly affected by fuel spillage। फ्यूल जो गिरता है ना, छलगाव जो होता है, उसकी वजह से बिटुमिनस पेमेंट खराब होती है, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखना पड़ता है एयरक्राफ्ट में। नेक्स्ट इज द जेट ब्लास्ट। नेक्स्ट इज द जेट ब्लास्ट। थोड़ा आपको क्लियर नहीं है, सॉरी। ये जेट ब्लास्ट, यहाँ पे लिखा है जेट ब्लास्ट। जेट ब्लास्ट का देखिए मतलब क्या होता है, सिंपल। हाँ अभी क्लियर है। जेट ब्लास्ट जो होता है, ये देखिए एक जेट प्लेन आपको दिख रहा है। ये जो पीछे से जब प्लेन टेक ऑफ करता है ना, तो जबरदस्त यहाँ पे एक तरह का ब्लास्ट होता है। एकदम बहुत बड़ा ब्लास्ट नहीं होता है, छोटा सा हल्का सा ब्लास्ट होता है। इसकी वजह से पेमेंट पे भी असर पड़ता है, ठीक है। दिस इज द ब्लास्ट दैट कम्स आउट ऑफ द जेट इंजन एट द रियर ऑफ द एयरक्राफ्ट, प्रोवाइड्स फोर्स मूवमेंट ऑफ द एयरक्राफ्ट। जब टेक ऑफ करते वक्त ये होता है, ठीक है ना, मूवमेंट प्रोवाइड करने के लिए जेट इंजन में होता है। But if we consider it in case where aircraft is standing and the jet blast is coming from the rear, that is so hot and it creates a severe condition for the things on which it will be falling। ठीक है ना, जब ये खड़ा होता है, जब ये आएगा तो ये पेमेंट पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जेट ब्लास्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स प्लेन का, ठीक है। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स था। नेक्स्ट टाइम हम एयरपोर्ट का डिज़ाइन देखेंगे, ठीक है ना। एयरपोर्ट का साइट सिलेक्शन देखेंगे, सॉरी एयरपोर्ट का
साइट सिलेक्शन देखेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम साइट सिलेक्शन देखेंगे एयरपोर्ट का किस तरह होता है। चलिए, थैंक यू सो मच।